Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 4th, Subject Science, Chapter number 4 and Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए. We are going to start our next chapter, chapter number 4, and the theme for the chapter number 4 is adaptation in animal. Adaptation means the changes or the character which get developed into an animals to survive in a particular area, that is known as adaptation. Okay, so in this chapter we will learn what is adaptation first of all, why this adaptation is needed, and what are the adapted by the animals in the different region and how. इस चैप्टर की थीम क्या है? एडेप्टेशन इन एनिमल्स. मतलब एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन क्यों होता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, कैसे कैसे कौन कौन से कैरेक्टर या क्या क्या चीज़ अलग अलग एनिमल्स के थ्रू अपने शरीर में एडेप्टेड है, इन्होंने स्वीकार की है ताकि वो अपने आसपास एरिया में अच्छे से रह सके. सो लेट्स सी. फर्स्ट इज एडेप्टेशन इन एनिमल. ओके, सो लेट्स सी. Animals live in different environments. The place where an animal lives is its habitat. A dolphin's habitat is the ocean. A chimpanzee's habitat is the forest. A crocodile's habitat is the river. These are the different types of habitats such as rivers, ponds, deep oceans, hot dry desert, warm rainforest and snowy mountains. Some animals spend the most of their time in air. Animals live in different types of habitat, have a different food habits. They also face different dangers in their habitats. Animals develop special features that suit their food habits and help them survive in a particular habitat. Such special features are called adaptation. Okay, so you know very well that at the different place the different animals are found. That means there are so many animals that live in a different environment. Okay, and the place where they live, or we can call the home of the animals, is known as the habitat. Okay, example like fishes live in the ocean, so ocean is the habitat of the fish. Okay, chimpanzee that live in the forest, so home or we can say habitat is the forest for the chimpanzee. Now crocodile lives in a river, so river is the habitat for the crocodile. Okay, there are so many different kinds of habitat in our nature, which can be river, pond, deep ocean, that means the oceans. Okay, desert, rainforest, snowy mountains, that means the mountains which covered with the snow. These are the different types of the habitat, and different type of animals are found in different types of environment. And the habitat is the where the animal live, where the animal die, where the animal eat, where the animal drink water, where the animal reproduce. This is known as the habitat. Okay, and the air and the birds which fly in the air is the habitat for the birds. Okay, so as I told you in the beginning that the special features, the special characters or the changes which occur in an animal particular regarding to their environment, that is known as the adaptation. Okay, this adaptation helps the animal to survive in a particular area in a better way or in a better conditions. Clear? इस पैराग्राफ में क्या बताया आपको, हैबिटेट क्या होता है और एडेप्टेशंस क्या होता है.
तो जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे पोलर बेयर्स जो एंटार्क्टिका या कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, या फिर ओशंस में फिशेस पाई जाती है, क्रोकोडाइल रिवर में पाया जाता है। तो ये सब इनकी क्या है, हैबिटेट, मतलब अलग अलग एनिमल्स अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग वातावरण में, अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। और जहाँ एनिमल्स रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हैबिटेट। मतलब हैबिटेट का मतलब घर, एनिमल्स के रहने का घर, उसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। जैसे डॉल्फिन कहाँ रहती है, ओशन में, तो ओशन क्या हो जाएगा, डॉल्फिन का होम और हैबिटेट। चिंपांजी कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, चिंपांजी का हैबिटेट। क्रोकोडाइल रहता है रिवर में, तो रिवर क्रोकोडाइल के लिए क्या हो गया, हैबिटेट, मतलब उसका घर। हैबिटेट, एच फॉर हैबिटेट एंड एच फॉर होम। क्लियर। डिफरेंट टाइप्स के जगह होती है, डिफरेंट टाइप्स के घर होते हैं। जैसे नदी में भी कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं, ओके, गहरे समुद्र में भी पाए जाते हैं, एकदम गर्मी वाले एरिया जैसे रेगिस्तान जहाँ पे कैमल पाया जाता है, एकदम ठंड वाले एरिया जहाँ पे पोला बेयर्स वगैरह पाए जाते हैं, और एकदम जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है या घने जंगल होते हैं वहाँ पे भी एनिमल्स पाए जाते हैं। अब ये एनिमल्स अलग अलग जगह पे कैसे पाए जाते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स बॉडी में चेंजेस लाते हैं, अपनी बॉडी में चेंजेस लाते हैं, फिजिकली, इंटरनली, या बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर होता है, या बॉडी के अंदर चेंजेस, या बॉडी फंक्शंस में चेंजेस लाते हैं। ऐसे कैरेक्टर जो उनको उनके आसपास एनवायरनमेंट में जहाँ उनका घर है उनको वहाँ रहने में हेल्प करता है। ऐसे कैरेक्टर वो अपनी बॉडी के फंक्शंस में या अपने बॉडी पार्ट्स में क्या आते हैं, चेंजेस लाते हैं। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ADAPATATIONS, एडप्टेशन। एडप्टेशन का मतलब क्या होता है, अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाना, कुछ कैरेक्टर्स लाना, न्यू कैरेक्टर्स जो हमें हमारे आसपास एरिया में रहने में क्या करें, हेल्प कर सके। अगर एनिमल्स अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने वातावरण के अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर एडप्टेशन नहीं लाएगा या एडप्टेड नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ओके, मैं आपको सबसे बेसिक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे क्या आती है, हमारी गर्मी का मौसम आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े पहनने लगते हैं। वहीं जब हमारा विंटर सीजन आता है तो हम क्या करते हैं, स्वेटर पहनने लगते हैं। क्लियर। अगर कोई इंसान विंटर सीजन में स्वेटर नहीं पहनेगा तो वो मर जाएगा या बीमार हो जाएगा, या फिर गर्मियों में अगर वो एकदम स्वेटर और एकदम वूलन क्लॉथ पहन रहा है तो भी उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, गर्मी के कारण उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, वॉमिट हो सकती है। तो वैसे ही जैसे एनवायरनमेंट चेंज होते हैं तो वैसे अगर एनिमल्स उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं ढलेंगे तो एनिमल्स क्या कर सकते हैं, मर भी सकते हैं। क्लियर। सो एनिमल्स अपने बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस लाते हैं जिसकी वजह से वो अपने आसपास एरिया में, अपने आसपास पर्टिकुलर हैबिटेट में या जगह में एडेप्टेड हो सके। मान लो जो एनिमल्स फिशेस है, ओके, अगर फिशेस ओशन में रह रही है, क्या आप ओशन में रह सकते हो, क्या आप पानी में ज़्यादा देर या हमेशा के लिए रह सकते हो, नहीं। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, लंग्स है। लंग्स सिर्फ एयर से ऑक्सीजन ले सकते हैं, पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं ले सकते। और फिशेस के अंदर क्या होता है, गिल्स होते हैं। फिशेस के अंदर जो पानी में एनिमल्स रहते हैं उनके क्या होते हैं, गिल्स। अगर वही एनिमल्स लैंड पे आएंगे रहने तो क्या वो जिंदा रह सकते हैं, नहीं। क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि पानी फिश को जैसे पानी में से बाहर निकालते हैं वो मर जाती है। क्यों, क्योंकि उसे ऑक्सीजन ही नहीं मिलती ब्रीथिंग करने के लिए, सांस लेने के लिए। क्योंकि उसकी बॉडी में जो ऑर्गन है, ब्रीथिंग ऑर्गन है, जो गिल्स है, वो सिर्फ वाटर में से ही ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, हवा में से ऑक्सीजन नहीं ले सकते। ओके, तो ये क्या है, एक एडप्टेशन है। एडप्टेशन क्या है कि फिशेस के अंदर एक बॉडी ऑर्गन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, लंग्स नहीं है, गिल्स है। क्लियर। एडप्टेशन इन एनिमल्स। An adaptation is a change that take place in an animals which help it to live comfortably and bring up the young one in its environment. Clear? Adaptation means a change which occur in any animal. Okay, so it can survive, it can live in an area
comfortably and also give birth to their young ones. मतलब एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे चेंजेस अपने अंदर जो एनिमल लाता है ताकि वो अपने घर, अपने एरिया में आराम से क्या कर सके, रह सके और अपने बच्चों को भी वहाँ पे रख सके. क्लियर? And the adaptation may take place in the behavior of an animal. Many birds cannot bear the cold in water. Then they fly to far away places that are less cold and return to their home in summer. In the outside of the India, where there is a too cold region, okay, there is so cold region, but in the winter, the animals, the birds fly far away from that area to the India in the summer. Okay, so this is known as the behavior adaptation. मतलब कुछ बर्ड्स जो होती है जब इंडिया के बाहर, जब इंडिया में समर होता है और इंडिया के बाहर क्या होता है, विंटर, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, ऐसे एरिया में जो बर्ड्स रहती है, जो क्रेन, जो बगुले रहते हैं, वो क्या करते हैं, जब इंडिया में क्या होता है, समर सीज़न होता है, तो वो वहाँ इतना दूर से ट्रैवल करके कुछ महीनों के लिए इंडिया में आ जाती है. क्यों? क्योंकि इंडिया के बाहर जब हमारे यहाँ समर सीज़न होता है तो वहाँ बाहर विंटर सीज़न होता है. क्लियर? तो विंटर सीज़न में वहाँ इतनी ठंड होती है कि वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो वहाँ से उड़ के हमारे इंडिया में आ जाती है. और जब यहाँ पे विंटर सीज़न शुरू होता है और वहाँ पे समर सीज़न शुरू होता है तो वो फिर से उड़ के अपने घर चली जाती है. तो इसको कहते हैं बिहेवियर एडेप्टेशन. क्लियर? मतलब वो अपने अंदर कुछ चेंज नहीं ला रही, बस जगह वो चेंज कर रही है. द एडेप्टेशन में ऑल्सो टेक प्लेस इन द फिजिकल बॉडी ऑफ द एनिमल. Penguins and polar bear in the cold region of the earth, they have a thick layer of fur over their skin and a layer of fat below the skin to keep them warm. The long neck of the giraffe is an adaptation so that it can eat the leaves from the higher branch of the tall trees. Okay, the penguins, the polar bears, which live in a very cold region. Okay, so they can't walk away so far from outside of the India to the India. जो penguins और polar bears है वो उड़ के तो आ नहीं सकते और इतना दूर चल के भी नहीं आ सकते. Okay, तो what are their adaptation? They have adaptation in their body changes, in their physically in their body parts, like they have a fur, thick layer of fur on their body and a layer of fat just below the skin which protect them from the very cold region. Okay, जो पैगविन और पोलर बेयर होते हैं वो तो इतना दूर चल के नहीं आ सकते, बर्ड्स तो उड़ के आ जाते हैं बट वो चल के नहीं आ सकते. तो वो कैसे ज़िंदा रहते इतनी ठंड में? आप रह सकते हो इतनी ठंड में? नहीं. तो आप देखेंगे कि जो पोलर बेयर्स होते हैं उनके ऊपर वाइट कलर के बहुत सारे क्या होते हैं, पूरी बॉडी पे फर, बाल होते हैं. वो क्या करते हैं, उनको ठंड से बचाने का काम करते हैं. और उन्हीं बालों के नीचे एक अपनी स्किन के जस्ट नीचे एक मोटी सी फैट की लेयर होती है. फैट क्या करता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हमें गर्मी देने का काम करता है. तो पेंगुइन और पोलर बेयर के स्किन के नीचे क्या होती है, बहुत मोटी एक फैट की लेयर होती है. वो क्या करती है, उनको इतने ठंडे रीजन में भी गर्म रखने का काम करती है और इस वजह से वो जिंदा रहते हैं. जैसे सेकेंड मोर एग्जाम्पल इज द जिराफ. यू कैन सी द नेक ऑफ द जिराफ इज टू लॉन्ग. ओके, लंबी है क्योंकि ताकि वो बड़े बड़े ब्रांचेस, बड़ी बड़ी ट्री से पत्तियों को खा सके. तो इन ऐसी टाइप के जो बॉडी के अंदर, बॉडी के कैरेक्टर्स में, बॉडी पार्ट्स में चेंज होते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल एडेप्टेशन. क्लियर? सो हियर वी कंप्लीट आवर दिस लेक्चर. लेट्स द होमवर्क टाइम. There is only one homework, that is habitat, means रहने की जगह या घर. What you have to do, you have to do this in your rough notebook. Click the picture and send it on the school WhatsApp number before 9 o'clock. आपको ये वर्ड मीनिंग रफ नोटबुक में करनी है. ओके, इसकी पिक्चर क्लिक करनी है, फिर स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करना है. थैंक यू टिल देन एंड स्टे सेफ. हैव अ नाइस डे.